Good morning, student. Today we will learn about the next topic in chapter number 5. The next cell organelle is plastids. Plastids are found in all plant cells and in euglenoids. These plastids are large sized and easily observable under the light microscope. That means this is the plastids. These plastids are large in size. Plastids are large in size and easily observed under the light microscope. Plastids are also double-walled organelles. Plastids are also double-walled cell organelles which contains DNA, RNA and 70S type of ribosomes. मीन्स जो प्लास्टिड्स है वो प्लांट में हमको मिलते हैं और यूग्लिनॉइड्स, प्लांट सेल्स और यूग्लिनॉइड्स, इसमें प्लास्टिड्स हमको मिलते हैं. दिस प्लास्टिड्स दे आर लार्ज साइज्ड, उनका साइज लार्ज रहता है और वो इजीली ऑब्जर्वेबल रहते हैं किसमें, अंडर लाइट माइक्रोस्कोप. दे कंटेन सम पिगमेंट्स. उस प्लास्टिड्स में कुछ पिगमेंट्स होते हैं और वो पिगमेंट्स के हिसाब से उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं. तो ये जो प्लास्टिड्स है, दिस प्लास्टिड्स, इन दिस प्लास्टिड्स DNA, RNA एंड 70S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. देखो इधर दिखाया है फिगर में, दीज आर द प्लास्टिड्स. दिस इज द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. Based on the type of pigments, plastids are 3 types. Based on the type of pigments, plastids are of 3 types. The first type is called as chloroplast. This is the, see here in the figure, this is the chloroplast. Second is called as chromoplast. This is the chromoplast. And third one is called as leucoplast. This is the leucoplast. There are 3 types of plastids. That is, see here, this is the chloroplast, leucoplast and chromoplast. All these are 3 types of plastids. The first type is chloroplast. In protists like Euglena and algae, the plant cells contains chloroplast. That means the plant cells of algae and few protists like Euglena contain chloroplast. In Spirogyra, the chloroplasts are ribbon shaped. स्पायरोगायरा में देखा है क्लोरोप्लास्ट जो है वो कैसा दिखता है, रिबन शेप में दिखता है. इट डिफर्स इन साइज, नंबर एंड शेप. उसका साइज, शेप और नंबर जो है तो वो डिफर या डिफरेंट होता है. इन वेरियस सेल्स, इन प्लांट्स इट इज फाउंड इन ग्रीनर रीजन्स. प्लांट्स में जो है तो ग्रीन रीजन्स में वो मिलता है. क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन रीजन में हमको मिलता है. दिस क्लोरोप्लास्ट इज लेंस शेप. उसका शेप जो है, देखो इधर फिगर में देखो, उसका शेप जो है वो लेंस जैसा शेप उसमें रहता है.
but it can also be oval in shape or spherical in shape, discoid or ribbon like. Discoid or ribbon like. That means in case of Spirogyra, it is ribbon like. The shape is ribbon like. In some cases, it is oval in shape, spherical in shape and discoid in shape. A cell may contain single large chloroplast. जिस सेल में सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास्ट रहता है, तो एग्जाम्पल है उसमें क्लाइमेडोमोनास. एग्जाम्पल है क्लाइमेडोमोनास. और देर आर 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल सीन इन मीजोफिल सेल्स. मीजोफिल सेल्स जो है तो उसमें 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल, मतलब हर एक सेल में कितने होते हैं? 20 to 40 chloroplasts are seen in mesophyll cells. Mesophyll means the inner tissue of a leaf containing many chloroplasts. That means the inner tissue of a leaf. This is called as mesophyll. Chloroplast contain green pigments. देखो इधर फिगर में भी दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट जो है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या है? ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं. देर जो है ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं विथ अदर एंजाइम्स दैट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर बाय फोटोसिंथेसिस. देखो उसमें क्या क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट्स, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं और एंजाइम्स भी प्रेजेंट रहता है, तो उसकी मदद से क्या मिलता है हमको? शुगर मिलता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Then the inner membrane of chloroplast is less permeable. जो inner membrane है क्लोरोप्लास्ट का, तो ये less permeable है. The space limited by the inner membrane of chloroplast is called the stroma. देखो जो space है, the space limited by the inner membrane of the chloroplast. See here in the figure, this is the figure of chloroplast. तो इस फिगर में जो इनर लेयर है, तो इनर मेम्ब्रेन जो है क्लोरोप्लास्ट का, तो इस इनर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा. इट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा. तो ये जो पोर्शन है इसको बोलेंगे, देखो इधर फिगर में दिया है, ये लेबल इधर दिया है, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा. इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटन्ड मेम्ब्रेनस सैक्स. ये जो स्ट्रोमा है, तो स्ट्रोमा में क्या होता है? इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, एक तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक्स जो है, तो वो सैक्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं. उस सैक्स को बोलते हैं थाइलैकॉइड्स. इट इज कॉल्ड एज थाइलैकॉइड्स. देखो इधर फिगर में दिया है थाइलैकॉइड. दिस इज द थाइलैकॉइड. थाइलैकॉइड जो है, थाइलैकॉइड मीन्स व्हाट? ईच ऑफ अ नंबर ऑफ फ्लैटन सैक्स इनसाइड अ क्लोरोप्लास्ट बाउंडेड बाय पिगमेंटेड मेम्ब्रेन्स on which the light reaction of photosynthesis takes place and arranged in stacks of grana. Arranged in stacks of grana. This is called as thylakoids. देखो इधर फिगर में दिखाया है, this is the thylakoid. Membrane of thylakoids encloses a space which is called as lumen. मतलब थाइलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन है, इट एनक्लोजेज अ स्पेस, उसमें जो स्पेस प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलेंगे? ल्यूमेन बोलेंगे. क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलैकॉइड्स. इन दिस थाइलैकॉइड्स द क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट. थाइलैकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स called grana or the intergranal thylakoids. देखो thylakoids are arranged in stacks. Stacks means what? ढेर या फिर मराठीत रास असं म्हणतात. तर एकावर एक जे आहे, तर एकावर एक असे जे काही रचलेले आपल्याला दिसत आहेत, तर त्याला म्हणायचं ग्रॅना. इट इज कॉल्ड एज ग्रॅना. सिंगल असेल तर त्याला म्हणणार ग्रॅनम. सिंगल होगा तो उसको बोलेंगे हम ग्रैनम. देखो इधर दिया है फिगर में, दिस इज द ग्रैनम स्टैक ऑफ थाइलैकॉइड. ये जो सिंगल है उसको बोलेंगे हम ग्रैनम, और ये सब मिला के क्या हुआ? ग्रैना. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरग्रैनल थाइलैकॉइड्स.
There are flat membranous tubules called the stroma lamellae connecting the thylakoids of the different grana. ग्राना जो है तो ये इस ग्राना जो है तो ये फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स जो है तो उससे अटैच होते हैं. देखो इधर ये जो ग्राना है तो ये ग्राना ये फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स विच इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा लैमेली. ये देखो ये इधर फिगर में देखो मैं एरो दिखा रही हूँ, इधर फिगर में जो है तो इसको बोलेंगे स्ट्रोमा लैमेली विच कैन कनेक्टिंग द थाइलैकॉइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्राना. जो थाइलैकॉइड से डिफरेंट ग्राना के तो उसको जोड़ने का काम कौन करता है, ये स्ट्रोमा लैमेली करता है. द स्ट्रोमा कंटेन्स स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स. देखो स्ट्रोमा में क्या क्या रहता है, इट कंटेन्स स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स एंड एंजाइम्स विच कैन हेल्प्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. देखो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो है तो उसका सिंथेसिस इधर होता है तो किसकी वजह से होता है, राइबोसोम्स, डीएनए मॉलिक्यूल्स है, राइबोसोम्स है और एंजाइम्स प्रेजेंट है तो उसकी वजह से synthesis of carbohydrates and proteins can takes place. The ribosomes of the chloroplast are smaller. राइबोसोम जो है क्लोरोप्लास्ट में वो स्मॉलर साइज के होते हैं, दैट इज 70s देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स. मतलब साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स है वो 80s टाइप के होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम्स है वो 70s टाइप के होते हैं, दैट मीन्स स्मॉलर टाइप के होते हैं. देन सेकंड टाइप जो है उसको बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट जो है तो क्रोमोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन एंड ज़ांथोफिल. क्या क्रोमोप्लास्ट जो है तो उसमें पिगमेंट्स रहते हैं, दे कंटेन्स पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन एंड ज़ांथोफिल. क्रोमोप्लास्ट आर रेड, येलो और ऑरेंज इन कलर एंड आर फाउंड इन पेटल्स ऑफ फ्लावर्स एंड इन फ्रूट्स. देखो क्रोमोप्लास्ट जो है रेड कलर का होता है या फिर येलो या फिर ऑरेंज कलर का होता है, रेड, येलो और ऑरेंज इन कलर, एंड आर फाउंड इन पेटल्स ऑफ फ्लावर्स एंड इन फ्रूट और फ्लावर्स के पेटल्स जो है तो उसमें क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है. देयर कलर इज ड्यू टू टू पिगमेंट्स. देखो उसमें दो तरह के पिगमेंट्स होते हैं, एक कैरोटीन एंड दूसरा है ज़ांथोफिल. कैरोटीन जो पिगमेंट है तो कैरोटीन इट इज ऑरेंज और रेड प्लांट पिगमेंट फाउंड इन कैरोट्स एंड मेनी अदर प्लांट स्ट्रक्चर्स. देखो जो ऑरेंज और रेड कलर का जो पिगमेंट है तो उसको बोलते हैं कैरोटीन पिगमेंट विच इज फाउंड इन कैरोट्स. तो कैरोट्स में ये प्रेजेंट रहता है एंड मेनी अदर प्लांट स्ट्रक्चर्स. उसका एग्जाम्पल है कैरोटीन का कैरोट्स. देन सेकंड पिगमेंट है ज़ांथोफिल, अ येलो और ब्राउन कैरोटीनाइड प्लांट पिगमेंट विच कॉजेज द ऑटमन कलर ऑफ लीव्स. देखो येलो और ब्राउन कलर का जो पिगमेंट रहता है कैरोटीनाइड प्लांट पिगमेंट उसको बोलेंगे ज़ांथोफिल विच कॉजेज द ऑटमन कलर ऑफ लीव्स. फॉर एग्जाम्पल दिया है पपया. देखो इधर प्लास्टिड्स इन फ्रूट टिश्यू में दिखाया है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये अनराइप फ्रूट में हमको दिखता है और राइप फ्रूट में ऐसा ब्राउनिश कलर का जो है तो ये राइप फ्रूट में हमको दिखता है क्रोमोप्लास्ट. इधर हुआ अनराइप फ्रूट में वो क्लोरोप्लास्ट रहता है और राइप फ्रूट में वो क्या रहेगा, क्रोमोप्लास्ट. इधर वैसे ही सेम दिखाया है, ये जो कलर है ये ग्रीन कलर में दिख रहा है, इधर क्लोरोप्लास्ट रहेगा और इधर जो है राइप इसमें जो है तो उसमें क्या दिखेगा, ब्राउन कलर का क्रोमोप्लास्ट दिखेगा. और इधर कैरोटीनाइड्स पिगमेंट्स में येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स दिया है. देखो इधर फिगर में दिखाया है येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इधर दिखाए, उसके एग्जांपल्स उसी हिसाब से दिखाए. तो क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, फ्लावर्स इज टू अट्रैक्ट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन जो प्रोसेस है तो उसमें अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्ट एजेंट्स को अट्रैक्ट करने का काम ये फ्लावर्स करते हैं, क्योंकि फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं उसमें जो कलर्स होते हैं वो कलर्स किसकी वजह से आते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से आते हैं.
और दूसरा फंक्शन है फ्रूट टू अट्रैक्ट एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। देखो फ्रूट जो है तो फ्रूट भी अट्रैक्ट करते हैं एजेंट को, फ्रूट टू अट्रैक्ट एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। डिस्पर्सल जो है, डिस्पर्सल्स मीन्स व्हाट, अ एक्शन और प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग और स्प्रेडिंग थिंग्स और पीपल ओवर अ वाइड एरिया। मतलब स्प्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग का काम जो है तो वो करने का काम जिस प्रोसेस में होता है उसको बोलेंगे डिस्पर्सल। डिस्पर्सल मीन्स अ एक्शन और प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग और स्प्रेडिंग थिंग्स, इट इज कॉल्ड एज डिस्पर्सल। तो ये फ्रूट जो है टू अट्रैक्ट एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल, तो दिस इज द क्रोमोप्लास्ट। And last type is leucoplast. Leuco means colorless. That means leucoplasts are colorless plastids and occur in plant cells not exposed to light, such as roots and seeds. देखो ये colorless plastids होते हैं, तो इसलिए ये जो ल्यूकोप्लास्ट है वो लाइट के इसमें आते नहीं है, मतलब दे डू नॉट एक्सपोज टू लाइट, such as roots and seeds. They are colorless due to the absence of pigments. देखो कलरलेस क्यों होते हैं, उसमें जो पिगमेंट्स है, ग्रीन पिगमेंट हो, रेड हो, येलो हो या ब्राउन पिगमेंट हो, तो वो पिगमेंट उसमें एब्सेंट रहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट समटाइम्स डिफरेंशिएटेड इनटू मोर स्पेशलाइज्ड प्लास्टिड्स। मतलब ल्यूकोसाइट्स के, ल्यूकोप्लास्ट के अलग अलग टाइप्स है। तो पहला टाइप्स है अमाइलोप्लास्ट फॉर स्टार स्टोरेज एंड डिटेक्टिंग ग्रेविटी। देखो अमाइलोप्लास्ट जो है तो उसका फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, स्टार्च स्टोरेज होता है। इलायोप्लास्ट फॉर लिपिड स्टोरेज, प्रोटियोनोप्लास्ट फॉर स्टोरिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोटीन, प्रोटीन का स्टोर और उसका मॉडिफिकेशन उधर होता है। टैनोसोम्स फॉर सिंथेसाइजिंग एंड प्रोड्यूसिंग टैनिन्स एंड पॉलीफेनॉल्स। तो ये देखो इधर फिगर में ल्यूको मीन्स क्या बोला है मैंने, वाइट। तो ये जो है कलरलेस जो है, तो कलरलेस प्लास्टिड्स होता है, तो इसको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। तो उसका फंक्शन क्या है, स्टार्च, ग्रेन, ऑयल्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर स्टोवर्ड। देखो स्टार्च जो है, स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, दे आर स्टोवर्ड इन द ल्यूकोप्लास्ट। द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स, दूसरा फंक्शन क्या है, फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स का सिंथेसिस उधर होता है। देखो इधर ये पोटैटो दिखाया है, एग्जांपल देखो फिगर में, तो ये पोटैटो इधर दिखाया है, तो ये ल्यूकोप्लास्ट है। तो ये अमाइलोप्लास्ट जो है, अमाइलोप्लास्ट आर अ टाइप ऑफ प्लास्टिड डबल enveloped organelle in plant cells that are involved in various biological pathways. Amyloplasts are specifically a type of leucoplast. It is a type of leucoplast, a subcategory for colorless non-pigment containing plastids. देखो उसमें pigment absent रहता है, इसलिए वो colorless दिखता है। Amyloplasts are found in roots and storage tissues and stored and synthesized starch for the plant through the polymerization of glucose. देखो ये जो अमाइलोप्लास्ट है तो किस में मिलते हैं हमको, रूट्स एंड स्टोरेज टिश्यू एंड स्टोवर्ड एंड सिंथेसाइज स्टार्च। मतलब स्टोरेज टिश्यू और रूट्स में हमको मिलते हैं, और उसका फंक्शन क्या है, स्टोवर्ड फैट एंड सिंथेसाइज स्टार्च। स्टार्च और जो स्टार्च है वो स्टोवर्ड और सिंथेसाइज करने का काम उसमें होता है फॉर द प्लांट थ्रू द पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज। पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमराइजेशन मीन्स व्हाट, it is a process in which relatively small molecules called monomers combine chemically to produce a very large chain like or network molecule which is called as polymer. तो अमाइलोप्लास्ट का एग्जाम्पल है पोटैटो, उसका एग्जाम्पल है पोटैटो। स्टार्च सिंथेसिस रियलाइज on the transportation of carbon from the cytosol, the mechanism by which in currently under debate. That means the amyloplast का example है potato. Then second type है इलायोप्लास्ट. Elaioplasts are a type of leucoplast that is specialized for the storage of lipids in plants. देखो plants में
लिपिड्स का स्टोरेज जो है तो ये प्लास्टिड्स में होता है. इलाइलोप्लास्ट हाउस ऑयल बॉडी डिपॉजिट्स एज राउंडेड प्लास्टोग्लोबुलाई विच आर इसेंशियली फैट ड्रॉपलेट. देखो ये एग्जाम्पल दिया है ऑर्किड्स, लिली और ये ऑयल ड्रॉपलेट्स इधर दिखाए है. दिस इज द इलायोप्लास्ट. इलायोप्लास्ट का एग्जाम्पल जो है तो एम्ब्रियोनिक लीव्स ऑफ ऑयल सीड्स, citrus fruits, anthers of many flowering plants contains these type of plastids. Then third type उसमें है aleuroplast, that is the protinoplast. Protinoplasts are specialized organelles found only in plant cells. ये सिर्फ प्लांट सेल्स में हमको मिलते हैं. प्रोटीनोप्लास्ट बिलोंग टू अ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनेल्स नोन एज प्लास्टिड्स बिकॉज दे लैक पिगमेंट. उसमें पिगमेंट प्रेजेंट नहीं रहता, उसमें एब्सेंट रहता है. प्रोटीनोप्लास्ट आर मोर स्पेसिफिकली अ काइंड ऑफ ल्यूकोप्लास्ट. दे कंटेन क्रिस्टलाइन बॉडीज ऑफ प्रोटीन एंड कैन बी द साइट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इन्वॉल्विंग दोज प्रोटीन्स. देखो क्रिस्टलाइन बॉडीज उसमें प्रेजेंट रहते, प्रोटीन के क्रिस्टलाइन बॉडीज उसमें प्रेजेंट रहते. प्रोटीनोप्लास्ट आर फाउंड इन मेनी सीड्स. एग्जाम्पल दिया इधर, सीड्स सच एज ब्राजील नट्स, पीनट्स एंड पल्सेस. ऑल्दो ऑल प्लास्टिड्स कंटेन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीनोप्लास्ट वेयर आइडेंटिफाइड इन द 1960s and 1970s as having large protein inclusions that are visible with both light microscopes and electron microscope. देखो इधर दिया है ये सीड्स है, उसमें प्रोटीन्स हमको दिखते हैं. मतलब जो एलेरोप्लास्ट है तो वो प्रोटीन स्टोरेज का काम करते हैं. तो ये इधर ये सब प्रोटेनेशियस जो सीड्स है तो वो हमको इधर दिख रहे हैं. ये पीनट्स है, ये बादाम है, तो ये जो है तो इसमें से हमको प्रोटीन्स जो है वो प्रोटीन्स हमको मिलते हैं. नेक्स्ट ऑर्गेनेल है राइबोसोम्स. राइबोसोम्स यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल. देखो राइबोसोम्स जो है तो वो क्या है, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल. अवेयर मीन्स व्हाट, हैविंग नॉलेज. मतलब आपको अवगति होगा कि जो प्रोटीन फैक्ट्री जो है तो वो किसको बोलते हैं, राइबोसोम्स, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल. दे आर यूज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स. देखो दे यूज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स. राइबोसोम्स वेर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड as dense particles. They are first observed as dense particles in electron micrograph of a cell by the scientist Palade. देखो इधर फिगर में दिखाया है, this is the photo of George Palade which can be first observed ribosomes in 1953. These are the non-membranous granular structures composed of ribonucleic acid which is called as RNA, that is the ribonucleic acid and proteins. Ribosomes are made up of ribosomal RNA and proteins. They do not have any membranous covering around them. That means non-membranous. In a eukaryotic cell, ribosomes are present in mitochondria, plastids and in cytosol. देखो यूकैरियोटिक सेल जो है तो राइबोसोम्स किस में प्रेजेंट रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में. हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, उसमें भी राइबोसोम्स है. प्लास्टिड्स है एंड इन साइटोसोल. राइबोसोम्स इन साइटोप्लाज्म आर आइदर फाउंड अटैच्ड टू अदर सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देखो पिछले सेल ऑर्गेनेल हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़ा है, तो उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है तो उसके सरफेस पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अटैच होता है तो उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रेटिकुलम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और फ्रीली सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म. बोथ आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड आर ATS टाइप. देखो उसमें जो होते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं, ATS टाइप के होते हैं. ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स.
हर एक राइबोसोम दो सब यूनिट से बना हुआ है, एक लार्जर सब यूनिट्स और दूसरा है स्मॉलर सब यूनिट। तो लार्जर जो सब यूनिट्स है तो वो लार्जर सब यूनिट्स और स्मॉलर सब यूनिट। बाउंड राइबोसोम्स जनरली प्रोड्यूस प्रोटीन्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल आफ्टर प्रोसेसिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी भी पढ़ा है, तो उसमें राइबोसोम का क्या रोल है ये भी हमने उधर पढ़ा है। उसमें एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल बाउंड राइबोसोम्स ऑफ एकिनर सेल्स ऑफ पेनक्रियाज प्रोड्यूस पेनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम। देखो एकिनर सेल्स जो है पेनक्रियाज का, तो उसमें से पेनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। फ्री राइबोसोम्स कम टुगेदर, जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं उसके पास आते हैं एंड फॉर्म चेन्स विच इज कॉल्ड एज पॉलीराइबोसोम्स विच कैन बी हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। Free ribosomes generally produce enzymatic proteins that are used in cytoplasm like enzymes required for breakdown of sugar. Eukaryotic ribosomes has two subunits. देखो इधर 60S that is large subunit and 40S it is called as small subunit. देखो इधर फिगर में दिखाया है, this is the 40S small subunit, this is the 60S large subunit. They together form 80S subunit. They can together to form 80S subunit. Both types of ribosomes can interchange position and function. Number of ribosomes is high in cells actively engaged in protein synthesis. उसका मेन फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, दैट मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, थैंक यू।